Assalamu alaikum to all the students and welcome to you all in our English language class. Today we are having language lecture and this is lecture number 21 and the topic is application writing. We have already done letter writing and now this is the topic of application writing, that how you can write an effective application to the principal in your syllabus. Okay, and sometimes it is also used in the offices, in the business, by the business employees to their bosses. ठीक है, तो application can be written to anybody who is the authority, you may say, to give you the leave, to give you any concession, to give you any rebate. ठीक है, so this is the application writing. And now we are going to start. How can we start application writing? First of all, we have the opening paragraph. Okay, how do we open? The first thing to write is the post of an authorized person and address of your school. When you are going to write in your stage at your level, you have to write the application to the principal. Okay, whatever is the reason that you are requesting for the leave, or you are requesting for free ship, that you are not able to pay the fees and you are now going to request that you want to be an you want to be the student who has got the opportunity of free ship. ठीक है, तो आप without paying any fee you can take the classes with any relevant reason, with any genuine reason you may request for that. Or it can be an application for the field trip, okay, to go for the picnic, and you have to give a proper opening for that. And the proper opening is you have to start the application with the address of your school, and it should be authorized, it should be written to the authorized person. Okay, and address will be very proper and authorized. ठीक है, the address should be accurate and complete. Obviously it is written at the top left hand with the margin, means you have to write your postal address of your school or the authorized person at the left side. Here at the left side with the margin you have to start writing the application. In the end, after explaining all the features and all the points of application, we will inshallah see the complete form of application. You can say specimen of the application. Um, okay, this is the opening, that the first thing you have to write with the margin from the left side, that it should be written to the authorized person, and the address should be very proper and complete and accurate, and it is written at the top left hand with the margin. You have to start with the margin, no gap after the margin you have to give in over there. Now then, after the opening you have to set the salutation, that whom you are going to write and how you will call him or her. Okay, now since you know the person you are writing to, the salutation must be formal and respectful as well. So to whom you are writing, you know the person to whom you are writing, whether he is male or female. Okay, the person you are writing to, the salutation must be formal and respectful as well, means you don't have to be very casual with that person. You are not friend of that person, you are not frank with that person. You should be very respectful to call him or her, and you should be very formal with him or her. Okay, for example, you are going to start and you are requesting with the person by these specific words like respected madam or sir. ठीक है, most respectfully you will start by this, but this is the salutation where you are when you are calling to someone, जब आप किसी को मुखातिब कर रहे हैं. ठीक है, so you will grab the attention by these types of words, respected sir or madam in case of male or female. Then we come to the subject. After opening and salutation we come to the subject, that what should be the subject of the how it could be written, the subject of the application. That starting should be very to the point and the words selection should be very accurate. Your
application is not that how are you, and you are not going to ask their family members, their family, their what they are going to do and how they are, who is the different things which you ask in the letter writing. You don't going to ask, you are not going to ask in this application writing. It is very to the point. Okay, we are very selected with the words also, because the person is very formal. He is not our friend कि हम उससे कुछ भी कह दें और वो चल जाएगा. No, you should be very accurate, you should be very selective, and you should be very alert that whom you are talking to, whom you are requesting to. He is the boss, he is the principal, he is senior than you. Okay, so you should be very formal, and you are having the most appropriate and very respectful words selection should be there. सो इट शुड बी वेरी टू द पॉइंट. ओके, इधर उधर की बातें नहीं करनी होती. एंड वर्ड सेलेक्शन शुड बी वेरी एक्यूरेट. इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे you will describe the purpose of your leave request. Okay, in this specific topic we are going to ask for the leave. Okay, we are requesting for leave. You can ask, you can select your own subject according to your situation. So in a very respectful way, in a very mannerable way, you will describe the purpose of your leave. In this subject point of view I'm talking about, only as far as the subject is concerned, you have to be very selective with the words. You should be very accurately use the words, and you are very to the point with the with your theme, with your subject. Okay, and in the most respectful way you are going to ask, you are going to request for the leave, for the free ship, or for the field trip arrangement, or anything you may ask. Now, requesting paragraph is in which you are going to request. Okay, first of all you have given the opening, which is the address, accurate address, and to whom you are talking to the person. This is called the salutation. Okay, then we have got the subject. We have explained the subject in a single sentence, that asking for leave for 2 days, for 5 days, for 1 month, for 15 days, whatever. Then come to the requesting paragraph, in which you properly write that what is the problem you are having, that's why you are writing this application. You will again request in this paragraph by summing up the reason of the leave. Okay, now you will give the reason of the leave also. Okay, first of all you have asked for the leave, that I need this time duration leave, and I am not able to come to the school, to come to the office, to come to the workplace for those days. And now you are giving the reason of that not coming, of whatever you are asking for. So you are not you are going to summing up the reason of the leave, the reason of the free ship, the reason of requesting for going outside, or for vacation, whatever. Dates and days will be mentioned properly. Okay, when you will be giving them that I need leave from this date to this date, you should mention your dates with day, from the starting date and days and the ending days and date. Okay, both of the leave days should be given, from where, from which day you are going to start your leave and till the end. You should give the dates and day very properly. It should be mentioned very accurately, so that it, when it will be accepted, or when it will be when it will be accepted, then it will be convenient for you to take out the result of that leave or whatever. And then we had got the conclusion. In application writing there is no you can say it's a very hard and fast rule, that you don't have to talk from here and there. You are very accurate with the words, you are very to the point, and you have to just start and close that what you want. जस्ट आपने वो चीज़ बताई, उसका रीज़न दिया इन अ वन लाइन, इन अ सिंगल लाइन और टू, एंड देन it's ending. Now the conclusion is, in the conclusive paragraph
Be thankful to the person whom you are writing to for the anticipation. For the anticipation means that he will be considering, and he is now reading your application. It is also the consideration of that person. ठीक है, वो आपकी एप्लीकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस देकर पढ़ रहा है कि इट मीन्स दैट ही इज़ थिंकिंग हाँ भाई दिस द पर्सन हु नीड्स द लीव or whatever he is asking for or she is asking for. So anticipation means that he is very concerned with the person, that why he is asking for the leave, why he is asking for any reason, what is the subject. ठीक है, तो वो जो पढ़ रहे हैं आपकी एप्लीकेशन, इट इज़ ऑल्सो द importance giving matter of yours. In the conclusive paragraph, be thankful to the person. Now you have to conclude and you will be very thankful to the person that is most respectfully, and वो तो starting का था, then in the end you have to conclude. So you will give thanking you, yours obediently, yours sincerely. Okay, so these are the anticipating words. whom you are writing to for the anticipation. वो आपके ऊपर इतनी करम नवाजी कर रहे हैं, इतनी आपके ऊपर इतनी मेहरबानी कर रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन पढ़ के उसके ऊपर कंसीडर करेंगे. सो यू आर वेरी मच पॉजिटिव. वो पढ़ें ना पढ़ें, इट मीन्स यू आर पॉजिटिव बिकॉज यू आर राइटिंग. आप लिखी हुई सी उम्मीद पर रहे हो कि it will be considered, कि उसको consider किया जाएगा. So you will in advance you will be writing these words for the anticipation to the person whom you are writing to, and you will be very thankful in the ending that your application will be considered. This is the signature part that you have to give at the end after giving anticipation or thanking you. लिखने के बाद you will be giving the sign or your name. Signature is done with the properly written name and class. Okay, in your at your level you have to give yours obediently XYZ. After that you have to XYZ की जगह वैसे तो हम नाम mention करते हैं, but in your level till metric you are not going to tell your name. Okay, आप अब कभी भी अपनी identification या school identification you will not disclose. ठीक है, to keep it secret. ठीक है, इसलिए हम ये हैबिचुअल कर देते हैं that you are not going to write your name over there. You have to just write XYZ. in the starting also जब आप एड्रेस देते हैं स्कूल का, तब भी आप अपना प्रॉपर एड्रेस नहीं देते. मोस्टली एक चीज़ बता रहे हूँ आप, बट वो आप दे दें तो इट डजेंट मैटर, बट योर नेम शुड नॉट बी डिस्क्लोज फ्रॉम ओवर देयर. ठीक है, एंड इट विल बी रिटन एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड. जैसे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड मीन्स एट द एंड ऑफ द राइट हैंड साइड. ठीक है, आप इस तरह लिखना शुरू करें कि आपका ये योर्स ओबीडियंटली एंड दिस कॉमा शुड बी विद द एंडिंग ऑफ द पेज. ठीक है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे you will end, you will give the signature that yours obediently comma XYZ full stop. Class will be over there like 7 है, A है, B है और G है. It's your section. And then date will be given at the left hand side in the same row with the margin. Okay, margin के साथ हम start करेंगे. For example dated लिखकर, no date नहीं लिखना, dated. Then you have to put the colon over there, and then any date should be over there. जैसे अगर हम चाहें तो यहाँ पर today's date we can mention over there, like today is 13th. ठीक है, 13th November. ठीक है, 13th November and 2020. अच्छा, 2020 if you are writing then no need to give this apostrophe. और अगर हम apostrophe देते हैं तो it means कि we are contracting something. हम इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्शन देते हैं कि हम पूरा 2020 नहीं मेंशन कर रहे. ठीक है, सो दिस इज़ द राइट वे ऑफ राइटिंग दी डेट व्हेन यू आर मेंशनिंग द डेट. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल दैट यू हैव टू राइट डेटेड, नॉट डेट. Dated must be written over the DATED, dated colon then 13th of November and then 20. This is the proper way. Acha, now I'm summing up all the parts of the application. That first of all we are having opening in which we use the authorized and accurate address of the school, of our school, to the relevant person. If we are writing like the principal, you have to give the proper address of your school. And
the person, the authorized person you are asking or requesting for the leave, ठीक है, like to the principal and SM Public Academy campus 5, then Gulistan Johar Karachi. We are not going to give here street ye, house number ye or Bangalore number ye, whatever, it is not required over there, ठीक है. Just proper address means कि आपने complete address, because nowadays we are not having this type of कंडीशंस कि हम जो है वो एक प्रॉपर लेटर एप्लीकेशन डालकर उसको डिस्पैच कर रहे हैं पोस्टल एड्रेस पे. नो, ये आजकल तो होता नहीं. इट्स जस्ट अ पैटर्न दैट हाउ यू अप्लाई for the for your request, apply for your leave, whatever you are asking for. तो उसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, बट ये एक स्टैंडर्ड है हमारे पास लेटर का, एप्लीकेशन का, कि इसी तरह की राइटिंग्स होनी चाहिए. ऑल्दो वी आर नॉट राइटिंग लेटर्स नाउअडेज, हम काफ़ी अर्से से हमारे लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग मोस्टली ख़त्म ही हो चुका है. बट इनसाइड द स्कूल इफ़ यू आर willing to say or to talk about anything to the principal, so it is the very beneficial and effective way to talk with your principal, okay, or the director of the school. if you are not directly going to the person, अगर आप उनके पास जाने के लिए directly allowed नहीं हैं, and you want to talk with that person, with that relevant who is the actual decision maker, तो आप उसको क्या करेंगे कि you can write an application, और आप अपनी दिल की बात उन तक पहुंचा सकते हैं. You can communicate with that person by giving this application, okay. तो this is the shortest and effective way, ठीक है. So you will be writing over there the relevant person to whom you are writing and the address of the school. Then come to the salutation. In salutation we are most formal, we become most respectful, and we call the person, हम मुखातिब करते हैं उनको, अटेंटिव करते हैं अपनी तरफ, that most respectful person, sorry, we used to call रिस्पेक्टेबल मैडम और सर, ठीक है. या रिस्पेक्टेबल टीचर तो खैर नहीं होता, रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेबल मैडम, रिस्पेक्टेबल सर यू मे कॉल इन द सैल्यूटेशन. अच्छा, देन वी हैव द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में हम वेरी टू द पॉइंट हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं व्हाट इज़ द मैटर ऑफ राइटिंग दिस लेटर, ठीक है. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ राइटिंग दिस एप्लीकेशन. दैट द सब्जेक्ट इज़ लीव फॉर 5 days, or leave for a month, or requesting for an outing arrangement, okay. So these are some main subjects. रिक्वेस्टिंग फॉर फ्री शिप. फ्री शिप बेटे, अरे फ्री शिप का मतलब इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे द फीस, और योर फादर और योर गार्जियन हु एवर इज़ द पर्सन हु पेज़ योर फीस, जो आपके अखराजात उठाता है, जो आपके एक्सपेंसेस बेयर करता है स्कूल के एजुकेशन के, तो ही इज़ नॉट एबल टू पे द फीस फॉर द फ्यूचर, कि वो अब इस काबिल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ओके. वी विल बी डूइंग दिस थिंग इन द क्लास, ओके. हम ये करेंगे एक ना एक इसकी एप्लीकेशन फ्री शिप के ऊपर भी. तो द फ्री शिप हम उस वक्त रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं व्हेन यू आर नॉट एबल टू पे द फीस, किसी भी वजह से, कि आपके फादर जो है उनकी जॉब ख़त्म हो गई है, ठीक है. हम एज्यूम करते हैं, ठीक है. दिस इज़ ऑल अबाउट अजम्पशंस, कि हम एज्यूम करते हैं कि फ़ादर की जॉब ख़त्म हो गई है, तो वी आई एम नॉट एबल टू पे द फीस बिकॉज घर के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि उसको बेयर करना ही मुश्किल हो रहा है, ठीक है. तो फीस स्कूल की आप मेरे लिए कुछ महीनों के लिए माफ़ कर दी जाए, मुझे फ्री शिप अलॉट कर दी जाए, मुझे फ्री शिप, मेरी रिक्वेस्ट ऑफ फ्री शिप वुड बी एक्सेप्टेबल. अदर देन दैट, फ्री शिप का मतलब ये है कि यू आर नॉट एबल टू पे द फीस, ठीक है, किसी भी वजह से, कि मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और वी हैव 6 सिबलिंग्स, तो उनके अखराजात उठाना बहुत मुश्किल है. सो आई हैव ओनली 1 year लेफ्ट टू पास द मेट्रिकुलेशन, कि मैं 9th में हूँ, अब 10th रह जाती है मेरी, तो 1 साल के लिए मुझे फ्री शिप दे दी जाए, तो इट मीन्स कि मेरा पढ़ाई का बोझ एक मेरे फादर के सर से उतर जाएगा, ठीक है. कोई भी रीज़न यू कैन मेक बाय योर ओन, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रीज़न बना सकते. फ्री शिप का मतलब ये है, जैसे स्कॉलरशिप होती है, उसी तरह की फ्री शिप का एक नाम दिया हुआ है, कि फ्री शिप मीन्स यू आर नॉट एबल टू पे द फीस, और आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन जो भी आपके अब तक अखराजात उठाते रहे हैं, एक्सपेंसेस बेयर करते रहे हैं, they are not able to pay the fees of the school, so you are asking for the free ship, कि मुझे मेरी एजुकेशन के अखराजात माफ़ कर दिए जाएँ और मैं फ्री में पढ़ूँ यहाँ पर, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड द फ्री शिप. अच्छा, नाउ वी वर एट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स यू आर गोइंग टू अगेन
tell in a single line that you are रिक्वेस्टिंग फॉर, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है. देन रिक्वेस्ट फॉर फ्री शिप, हम जो अब एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू राइट, ठीक है, हम जो लिखेंगे इट विल बी अबाउट द फ्री शिप. ठीक है, तो फ्री शिप का आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ फ्री शिप. नाउ यू विल बी गिविंग द सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर फ्री शिप के वॉट एवर इज़ द रीज़न, बट आपकी रिक्वेस्ट फ्री शिप है, आप उसको एक्सप्लेन जो करेंगे, एग्जैजरेट जो करेंगे, इट विल बी इन द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन. ठीक है, दिस इज़ यू कैन से दिस स्लाइड इज़ योर वेब ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, ओपनिंग, एड्रेस, सैल्यूटेशन, देन सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर फ्री शिप, रिक्वेस्ट फॉर 5 days लीव भी हो सकता है. यू कैन डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा इन द पेपर्स, इन द क्लास कॉपीज़ में जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट, और ये रिक्वेस्ट फॉर फ्री शिप को आप रिक्वेस्ट फॉर समथिंग एल्स कर सकते हैं. ठीक है, thanking you in anticipation at the end when you are summing up all the things, और आप again उनसे thanking you करते हैं कि in advance I am thanking you that my application will be considered, कि आप उसको consider करेंगे, and I am waiting for I am looking forward, or I am waiting for the positive reply. ठीक है, then you have to come to the end and write down the date with the extreme left hand right. ओके, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि डेटेड लिखकर और आपने इस तरह डेट मेंशन कर देनी है. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द एंडिंग एंड डेट. अच्छा, नाउ दिस इज़ दिस इज़ अ सैम्पल एप्लीकेशन. यू मे से राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हर फॉर फ्री शिप. नाउ दिस इज़ वेरी एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू योर स्कूल. ठीक है, ये हम अपने स्कूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे. अच्छा, तो हम यहाँ पर आर डायरेक्टर और आर प्रिंसिपल इज़ फीमेल, सो वी विल बी रिक्वेस्टिंग टू द हर. ठीक है, हम हर लिखेंगे यहाँ पर. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हर फॉर फ्री शिप. फ्री शिप आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज फ्री शिप. नाउ विद द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड विद द मार्जिन यू हैव टू स्टार्ट 2 comma to the principal. Okay, and ABC school, here you can also write your own school name, but as I told you that your identities should not be disclosed. ठीक है, आप अपनी आइडेंटिटीज़ को छुपा के रखते हो इन द, क्योंकि एज हम स्कूल में हैं तो हमारा स्कूल मैट्रिकुलेशन पे जाके एंड होता है. ठीक है, मैट्रिक पे 9-10 कंप्लीट करके मैट्रिक पे जाके एंड होता है. सो वी आर फ्रॉम 1 क्लास, वी आर नाउ प्रिपेयरिंग टू पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन. ठीक है, हम जो 1 क्लास से यहाँ पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेजुअली द थिंग्स आर इंक्रीजिंग, द थिंग्स आर एडवांसिंग, एडवांस लेवल पे हम चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं. तो इन द 7th क्लास, इन द 6th क्लास, वी आर नाउ प्रिपेयरिंग आवर सेल्स फॉर द मैट्रिक एग्ज़ाम्स. ठीक है, हम अभी से अपने आप को मैट्रिक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो ये सही पैटर्न है टू राइट द एप्लीकेशन इन द मैट्रिक और 9th, क्योंकि वो बोर्ड वालों के हाथ में जाता है. दिस इज़ द एप्लीकेशन विच आई विल चेक. ठीक है, ये मैं आपकी क्लास कॉपीज़ में मैं चेक करूँगी. ओके, when you will be giving the final exam और मिड टर्म एग्जाम, तो अगेन इट विल बी चेक बाय मी. ठीक है, ये तो आपके स्कूल का लोकल मैटर है. बट व्हेन यू आर राइटिंग द एप्लीकेशन और लेटर इन 9th and 10th, उस वक्त जब आप इंग्लिश के पेपर्स में जब आप अपनी एप्लीकेशन और लेटर लिखेंगे, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू शो योर आइडेंटिटीज ओवर देयर. वाई? बिकॉज इट विल बी चेक बाय द बोर्ड पर्सन, बोर्ड एग्जामिनर्स, बोर्ड इन्विजिलेटर्स, बोर्ड चेकर्स. ठीक है, तो ये उनके हाथ में जाने वाला पेपर है. तो यू आर नॉट गोइंग टू रिलीज योर, यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनी क्लू ऑफ योर ओन पर्सनल आइडेंटिटी. आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी का कोई क्लू उनके हाथ में नहीं देते. ठीक है, अभी भी हम वेन एवर इफ़ यू आर वॉकिंग टू द रोड और कोई आपसे पूछे बेटे आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, किस ऑफिस में काम, तो क्या आप सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे दोगे? नो. मीन्स वी हैव सम लिमिटेशंस ड्यू टू सम सिक्योरिटी पर्पस. ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के थ्रू हम अपनी आइडेंटिटीज़, अपनी कुछ पर्सनल मैटर्स वी डू नॉट शेयर विद एनी बडी जिसको हम जानते नहीं हैं. ठीक है, हाँ, अगर कोई पर्सनल, कोई ऐसा जानने वाला बंदा है, कोई इफ़ द पर्सन हु इज़ वेरी नोन टू अस, ठीक है, तो हम उसको बता सकते हैं कि हाँ, इफ़ यू हैव मिस्ड माई फादर्स नंबर तो आई कैन गिव यू, और इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू डोंट रिमेंबर आवर एड्रेस, तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ फ़ोन पर जो भी है. बट इफ़ देयर इज़ एन अननोन पर्सन, तो यू डू नॉट आप उसको अपने शो ऑफ नहीं करते, एंड यू डू नॉट डिस्क्लोज योर
पर्सनल आइडेंटिटीज़, अपनी सिक्योरिटीज़ के पर्पज़ के थ्रू आप उसको हर बात नहीं बता देते. तो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू गिव द नेम ऑफ आर स्कूल ओवर हेयर. ठीक है, हम यहाँ अपना स्कूल नेम नहीं देते बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मैट्रिक एग्जाम्स. तो वहाँ मैट्रिक एग्जाम्स में जब चेकर के हाथ में कॉपी जाए तो ही शुड नॉट नो अबाउट योर स्कूल, कि आप किस स्कूल से हो. मे बी उसका बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता हो तो वो चाह रहे हो कि इस स्कूल के बच्चे सारे पास हो जाए. ठीक है, तो यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज योर ओन आइडेंटिटी. आप अपने स्कूल का नाम प्रॉपरली यहाँ नहीं बताते. ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू विद एनी नॉटीनेस और यू में से किसी भी वजह से अगर आप शरारती तौर पे भी अगर अपने स्कूल का नाम मेंशन कर दे तो इट विल बी रॉन्ग. ठीक है, वो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल हो जाती है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ द रूल. ये रूल है. इफ़ यू डोंट फॉलो द रूल योर पेपर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टू बी चेक्ड. ठीक है, तो to the principal ABC school you are not going to give the school name over there. ठीक है, then Karachi, this is the proper and accurate address. ठीक है, to the principal ABC school, then city name, then this is called the salutation. ठीक है, ये हमारी opening है. Then this is called the salutation. Respected madam, sir, most respectfully I beg to state that I am unable to pay my school fees as my father is a government officer and he draws a meager income. Meager income means बहुत थोड़ा सा खर्चा उनको मिलता है, बहुत थोड़ी सी सैलरी उनको मिलती है. मीगर मीन्स बहुत ज़्यादा तंगी वाली हालत में जो लोग होते हैं उनके लिए ये मीगर का वर्ड यूज़ होता है. अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम यू मे ऑल्सो से, अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सैलरी यू मे से ही ड्रॉज, अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सैलरी, अ वेरी स्मॉल सैलरी तो वो गलत हो जाएगा. बट मीगर इनकम इट्स अ प्रॉपर वर्ड, इज़ अ प्रॉपर vocabulary फॉर दैट सैलरी. ठीक है, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी फ्री शिप. ओके, these are only 3-4 lines of the application. Then thanking you in anticipation, yours obediently XYZ, and then class, and then your date should be mentioned over there. ठीक है, see the web के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टिंग फॉर फ्री शिप हो गया, देन थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन हो गया, एंड देन ये आपकी एंडिंग हो गई, एंड देन डेट हो गई. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द होल एंडिंग, दिस इज कॉल्ड द होल ओपनिंग है. ये पूरी कंप्लीट आपकी ओपनिंग है. नाउ द एप्लीकेशन वी हैव जस्ट डन, लेटर राइटिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन एंड लेटर, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड इन एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग, क्योंकि उनको फिर यही समझ में नहीं आता कि हाउ शुड वी स्टार्ट, क्योंकि देर इज़ सम डिफरेंसेस बिटवीन द लेटर एंड एप्लीकेशन की ओपनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है एंड एंडिंग में भी थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफरेंस है. ठीक है, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि उनमें आगे क्या डिफरेंस है, और एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग में हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चीज़ एप्लीकेशन राइटिंग में नहीं आती और ये चीज़ लेटर राइटिंग में नहीं आती. ठीक है, इन दोनों को अगर आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, अच्छा जी, तो come to the next slide when I will be giving you the sample of, ये है आपका लेटर. ठीक है, सी द लेटर एंड सी द एप्लीकेशन ओवर देयर. ठीक है, सी in the letter you start the letter at the right hand side. ठीक है, when the page is ending from the right hand side. ठीक है, ये आपका नंबर 1 इट इज़ कॉल्ड एड्रेस. ठीक है, लेकिन यहाँ एप्लीकेशन में जब हम एड्रेस देते हैं तो इट इज़ एट द एक्सट्रीम लेफ्ट विद द मार्जिन. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सट्रीम राइट of letter address and this is called the extreme left of application writing. ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन का एड्रेस है और लेटर का एड्रेस हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता है. सेकेंड थिंग इज दिस दैट लेटर की डेट इट इज़ रिटन विद द एड्रेस. लेटर हमेशा एड्रेस के साथ, लेटर की डेट हमेशा एड्रेस के साथ गिवन होती है. ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग द लेटर, जिस डेट को आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं, यू विल मेंशन द डेट विद द एड्रेस इन लेटर, बट इन एप्लीकेशन यू डोंट मेंशन द डेट विद द एड्रेस, बट एट द एंड जब आप उसको पोस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली जब आप लिखेंगे तो उसी दिन पोस्ट कर रहे होंगे, बट इट इज़ अ पैटर्न, क्योंकि लेटर की जो डेट है वो आपकी लेटर वाले एड्रेस के साथ मेंशन होती है एंड एप्लीकेशन में डेट एट द एंड
दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ एंडिंग, कि वो फिर बिल्कुल एंड में जाके मेंशन होती है, ठीक है। नाउ कम टू द सैल्यूटेशन, यहाँ आप नंबर 3 पे जिसको भी लिख रहे हैं, ठीक है, वो उसका नेम है, दिस इज़ द सेम, दोनों का सेम होगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड विद द मार्जिन। यहाँ पर आप अस्सलाम वालेकुम, आई रिसीव योर लेटर, व्हाट अबाउट द फैमिली, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर मीन्स हाउ आर यू फीलिंग, प्रीवियसली आपकी तबीयत ख़राब थी, आई हर्ड अबाउट योर अनहेल्दीनेस, तो अब आप कैसे हैं, वॉट एवर जो भी हैं, हम इधर उधर की बातें भी कर रहे होते हैं। बट इन दी एप्लीकेशन राइटिंग वी डोंट आस्क ऑल दीज थिंग्स विद द प्रिंसिपल और डायरेक्टर, ठीक है। जिसको भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, या हमारे ऑफिस के कोई बॉस हैं, तो हम उनसे ये सारी इधर उधर की बातें नहीं करते। हम कम टू द पॉइंट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, फ़ौरन से टू द पॉइंट हम पॉइंट पर आ जाते हैं और उसको कंसिडर करते हैं और उसी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो बॉडी ऑफ द लेटर और बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन होगी। देन इन द एंड आप उसको, हम आपको मिस कर रहे हैं, पे सलाम टू द फैमिली एंड वॉट एवर जो भी आप कुछ लिखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लेटर में तो देते हैं, बट आप एप्लीकेशन में वो चीज़ नहीं देते, ठीक है। इन द एप्लीकेशन यू डोंट सी, यू डोंट राइट दिस के बस आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यू डोंट से दैट आई मिस यू, वी हैवंट टॉक सो मच टाइम फॉर सो मच टाइम, कि हम अभी तक काफ़ी दिनों से हमने एक दूसरे को देखा नहीं है। प्रिंसिपल तो ऑब्वियसली ही और शी हार्डली कम्स इन द क्लास, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे सारी बातें शेयर कर लोगे, ओके। तो दिस इज़ द थैंकिंग इन एंटिसिपेशन वी राइट इन द एप्लीकेशन, और हम लेटर में इस तरह का द रेस्ट इज़ ओके, प्लीज़ डू कम सून, वी ऑल मिस यू अलॉट, वॉट एवर जो भी है, हम ये सब लेटर में देते हैं, एप्लीकेशन में हम ये चीज़ें नहीं देते। देन एंडिंग दोनों की एक साथ ही होती है, एंडिंग दोनों की एक एक्सट्रीम राइट पर होगी, ओके। लेटर की एंडिंग भी और एप्लीकेशन की राइट एंडिंग भी। एंडिंग के वर्ड्स विल बी डिफरेंट, यहाँ हम योर्स ऑबिडेंटली लिखते हैं, वहाँ हम योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरली, ठीक है, ये सब कुछ लिखते हैं लेटर में, ठीक है। एंड देन एक्स वाई जी, ऑब्वियसली वी डोंट मेंशन आवर नेम, तो वो तो एक्स वाई जी तो आना ही है। अच्छा, यहाँ हम क्योंकि वी आर राइटिंग इनसाइड द स्कूल, सो वी विल मेंशन हेयर क्लास, ओके, क्लास विद द सेक्शन, बट क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्वियसली वी आर नॉट सिटिंग इन द क्लास व्हेन वी आर राइटिंग द लेटर, ठीक है, हम अपने घर में बैठ के सुकून से लेटर लिख रहे हैं, तो वी विल नॉट मेंशन ओवर हेयर आर क्लास एनीथिंग एल्स। हम अपना एड्रेस भी बाहर की साइड लिखते हैं, अंदर की साइड नहीं लिखते, ठीक है। तो दीज आर समथिंग वेरी पर्टिकुलर थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, कि आप एप्लीकेशन कब लिख रहे हैं और लेटर कब लिख रहे हैं, एंड विच पैटर्न यू आर लर्न वेरी एक्यूरेटली एंड प्रॉपरली, तो वही चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस आती है, ठीक है। तो यू हैव टू राइट वेदर द एप्लीकेशन और लेटर, उसके पैटर्न को एक दफ़ा अपने माइंड में रिवाइज ज़रूर कीजिएगा कि लेटर में ओपनिंग यहाँ से है, एप्लीकेशन में यहाँ से है, एंडिंग यहाँ से यहाँ पर है, एंड देन एंडिंग जो है here we have to end the application whatever। अच्छा, डेट वी हैव ऑलरेडी बिकॉज मेंशन इन द लेटर, तो ऑब्वियसली हम यहाँ लेटर में डेट को मेंशन नहीं करेंगे, बट इन द एप्लीकेशन we didn't mention the application में हमने we didn't mention the date with the address, so we will mention it at the end, ठीक है। दिस इज़ द that is all about the application and letter writing, so you should be very careful when you are writing an application to the principal, because application क्योंकि आपको क्लास में समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, if again you are writing wrong application to the principal, तो obviously principal तो गुस्सा होगी, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन और लेटर टू द पर्सन। लेटर में आप कुछ भी कर लो आगे पीछे, इट इज़ ओके, क्योंकि वो आपकी प्रिंसिपल या टीचर के हाथ में नहीं जा रहा, they will not scold you, it is written to the father, it is written to the uncle, it is written to the friends, but पोस्ट करने वालों के जो पोस्टल ऑफिस होते हैं, पोस्ट ऑफिस, दे हैव सम रिक्वायरमेंट, दे हैव सम पैटर्न, तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, दैट्स वाई वी हैव टू फॉलो द पैटर्न इनसाइड द लेटर ऑल्सो एंड आउटसाइड द एनवेलप ऑल्सो, ठीक है, वो आपने करना है। लेकिन आप अंदर उसके अपनी अकॉर्डिंग वर्डिंग कुछ भी लिख लो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। बट इन द एप्लीकेशन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर राइटिंग टू द टीचर और वाइल यू आर राइटिंग टू द प्रिंसिपल, ठीक है। और या आप अपने ऑफिस में किसी बॉस को राइटिंग करके दिखा रहे हो, तो ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू बी वेरी कंसर्न विद द पैटर्न, विद द वर्डिंग्स, ठीक है, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन एंड लेटर। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक जो री ही समझ लीजिए। ओके, लेटर वी हैव ऑलरेडी डन, एप्लीकेशन भी यू हैव ऑलरेडी डन, बट दिस इज़ कॉल्ड द री ऑफ, it is complete reinforcement topic. Maybe in the coming week, maybe, okay, I will let you know a day before and I will take your revision of this application and letter writing, या मैं खुद से ही आपको पैटर्न क्लास में भी एक दफ़ा और इसको एक्सप्लेन करके then you will be writing the body of the letter or application by your own. ठीक है, we will do it because we have आई हैव प्लान समथिंग मोर फॉर 1 वीक, क्योंकि हमें एक और रिवीजन का 1 वीक मिल जाएगा बिफोर द मिड टर्म, so we will be doing this. So this is all about the application and letter. If you have any question regarding this topic or any other topic if you want, ठीक है, as I have already posted the homework, okay, for the next week revision test, मैंने वो ऑलरेडी आपको पोस्ट किए हुए हैं. So if you have any confusion, any problem, you may ask right now. और इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर टॉपिक लेफ्ट इन मिड टर्म. ठीक है, द मिड टर्म टॉपिक्स आर ऑल एंडेड अब, और इसके अलावा कुछ है नहीं. सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग ऑल दीज टॉपिक्स अगेन एंड अगेन, टाइम टू टाइम. ठीक है, हम इन्हीं टॉपिक्स को आगे पीछे करके आई विल बी टेकिंग योर रिविजन्स एज आई एम टेकिंग नाउ डेज. जैसे लेटर के मैंने वॉइसेस के साथ टेंसेस भी डाल दिए एंड सेंटेंसेस भी. यू हैव टू गिव, यू हैव टू राइट दी सेंटेंसेज ऑल्सो ऑफ एडजेक्टिव्स. मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आपको वर्ब के सेंटेंसेस बनाने को दे दूँ. तो दीज ऑल आर द प्रैक्टिस ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स. ये आपकी सारी टोटल प्रैक्टिस है. ओके, इज देयर एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम regarding this topic or any other topic we have done or we are going to do? You may ask. Okay, I don't think so that you are having any problem regarding any revision or this topic. So we should leave now and you should be careful about your work completion. ठीक है, everything must be checked, must be completed by 15 of November I think ना. हाँ, तो it will be checked before 15. उसके बाद फिर checking मैं नहीं करूँगी. Okay, you should be very careful about your complete work checked. Your all the work, the syllabus which is coming in your midterm exams, which is already posted in the Google Classroom, आप उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को मैच कर लीजिए that you have completed all the things or not. ठीक है, अदर देन दैट कोई भी ऐसा टॉपिक है जो बहुत माइनर सा है, ठीक है, मे बी सिंगुलर प्लूरल आई वी हैवंट डन, तो इट्स अ सिंगल एक्सरसाइज. ओके, इट विल बी डन इन द नेक्स्ट वीक. वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में रिवीजन के ही तौर पर यू विल बी डूइंग दैट टॉपिक एंड इट विल बी डन एंड इट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ठीक है, सो वी शुड लीव नाउ. You should all take care of yourself and prepare for the midterm yourself and learn the revision, practice for that very carefully so that you may pass your midterm, because we are having a very long distance, long, you may say that there is a long gap बिटवीन द स्टडीज़ ऑफ अस. ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर की और अब जो फिजिकल स्टार्ट हुए हैं तो बहुत लंबा गैप आया है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक. सो यू शुड बी वेरी considerate and you should be very careful about your studies, that what you are going to do. Okay, तो मिड टर्म आपका फिर उसी के अकॉर्डिंग क्लियर भी हो पाएगा इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से. तो वी शुड लीव नाउ. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर टिल देन. अल्लाह हाफिज़.